وزیر اعظم عمران خان کی FBR کو 4,732 ارب روپے کے ٹیکس محاصل کا تاریخی ہدف حاصل کرنے پر مبارکباد۔ یہ ٹیکس ہدف گزشتہ سال کی نسبت 18% زیادہ ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حکومتی پالیسیوں کی بدولت معیشت مضبوط بنیادوں پر استوار ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم عمران خان سے گورنر سندھ عمران اسماعیل، سینیٹر سیف اللہ نیازی، رکن قومی اسمبلی عامر محمود کیانی اور اشرف قریشی کی ملاقات۔ سندھ میں وفاق کی طرف سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت اور پاکستان تحریک انصاف کی آئندہ تنفیذ سازی کے لائحہ عمل پر گفتگو۔ 18% اضافے کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ برآمدات کا ہدف سال 2020-21 میں حاصل ہو گیا۔ اگر سروس سیکٹر کو شامل کریں تو یہ 31 ارب ڈالر سے زیادہ کی برآمدات ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں پاکستان کا برآمد کنندہ پاکستان کے معاشی استحکام کا ہم ستون ہوگا۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کا ٹویٹ۔ ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.72% ریکارڈ، 1,277 نئے کیسز رپورٹ، 24 افراد لاپتہ۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 46,941 ٹیسٹ کیے گئے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی۔ ضلع پلوامہ میں ایک کشمیری نوجوان شہید، نوجوان کو محاصرے اور کراچی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ۔ پاکستان میں قید 609 بھارتی شہریوں میں 558 ماہی گیر اور 51 دوسرے قیدی شامل۔ بھارت میں قید 345 پاکستانیوں میں 74 ماہی گیر اور 271 دوسرے شہری شامل۔ معاہدے کے تحت پاکستان اور بھارت سال میں 2 بار قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان مختلف صوبوں میں شدید لڑائی جاری۔ صوبہ بغلان میں لڑائی کے باعث ہزاروں افراد گھر بار چھوڑ کر دوسرے شہروں میں پناہ لینے پر مجبور۔ طالبان نے صوبہ پختیا میں آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والے ایک اہم پل کو دھماکے سے اڑا دیا۔ بھارت میں کورونا کیسز کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 42,000 سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ۔ 790 مریضوں کی ہلاکت کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 60 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ مغربی مہاراشٹر اور گجرات میں بلیک فنگس پھیل گیا۔ اب تک بھارت میں بلیک فنگس کے 40,845 کیسز ریکارڈ ہو چکے۔ امریکہ اور کینیڈا میں شدید گرمی کی لہر جاری۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں ہلاکتوں کی تعداد 486 سے بڑھ گئی۔ البرٹا اور سیسکچوان میں بھی شدید گرمی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا ہیٹ ویو سے ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ امریکہ کی ریاست اوریگان میں ہیٹ ویو سے 63 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہیٹ ویو سے بیمار ہونے والے سینکڑوں افراد سے اسپتال بھر گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا مینز سینٹرل کانٹریکٹ 2021-22 کا اعلان۔ کانٹریکٹ میں 3 مختلف کیٹیگریز اور ایمرجنگ کرکٹرز شامل۔ کھلاڑیوں کی ماہوار آمدنی میں 25% اضافہ۔ تمام کیٹیگریز کے لیے یکساں میچ فیس مقرر۔ بابر اعظم، حسن علی، محمد رضوان اور شاہین شاہ آفریدی کیٹیگری اے میں، عمران بٹ، شاہ نواز خانی اور عثمان قادر ایمرجنگ کیٹیگری میں شامل۔ انگلینڈ کے خلاف کرکٹ سیریز قومی کرکٹ ٹیم کا ڈربی میں پریکٹس سیشن جاری۔ کھلاڑیوں کا انٹرا اسکواڈ میچ۔ مقابلوں کا آغاز 8 جولائی کو ایک روزہ میچ سے ہوگا۔
सीरीज होगी पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Has got through. What a way to finish. Straight sets. Federer into the third round. टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन की दिलचस्प मुकाबले जारी। स्विस लेजेंड रॉजर फेडरर के तीसरे मरहले में रसाई। बरतानिया के कैमरॉन नोरी, रूस के डैनियल मेदवेदेव, जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव, ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस और कनाडा के फेलिक्स ओवे एलियासीम की भी पेशकदमी। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और यूरो फुटबॉल कप 2020 क्वार्टर फाइनल्स आज खेले जाएंगे। लास्ट फोर में जगह हासिल करने के लिए टीमों की भरपूर तैयारियां जारी। पहले क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला इटली से होगा, दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन और स्विट्जरलैंड, तीसरे में यूक्रेन और इंग्लैंड के दरमियानी मुकाबला खेला जाएगा। चौथे क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क और जमहूरिया चेक की टीमें बाकू में आमने सामने हों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं सदफ अली खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की तरफ। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एफबीआई को 4,732 अरब रुपए के टैक्स महासिल का तारीखी हदफ हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की है। अपने एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये टैक्स हदफ गुज़श्ता साल की निस्बत 18% ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मेशत मजबूत बुनियादों पर उस्तवार हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, रुकन कौमी असम्बली आमिर महमूद कियानी और अशरफ कुरैशी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में सिंध में विफाक की तरफ से जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा तंजीम साजी पर गुफ्तगू की गई। कौमी सलामती के बारे में पार्लिमानी कमेटी का इजलास स्पीकर कौमी असेंबली असद फैसल की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में चेयरमैन सेनेट, कौमी असेंबली और सेनेट में कायदे हिस्से इख्तलाफ, विफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और वज़राए आला शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और कौमी सलामती के इदारों के सरबराहों ने भी शिरकत की। DGISI ने मुल्क की सियासी और पार्लिमानी क़यादत को दाखिली सलामती, अंदरूनी चैलेंजेस, खित्ते में वकूफ़ पसीर तब्दीलियों, कश्मीर और अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल और अहम उमूर पर जामे ब्रीफिंग दी। शुरा को बताया गया कि पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में इखलास के साथ निहायत मुस्बत और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की भरपूर काविशों की बदौलत मुख्तलिफ अफगान धड़ों और मुतहर्रिक ग्रुपों के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार हुई और अमरीका और तालिबान के दरमियान भी बामानी बातचीत का आगाज हुआ। पाकिस्तान इस बात पर यकीन रखता है कि अफगानिस्तान में पायदार अमन जनूबी एशिया में इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। पार्लिमानी कमेटी को बताया गया कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल के लिए अपना जिम्मेदाराना किरदार जारी रखेगा और अफगान अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत का हर सतह पर खैर मकदम करेगा। शुरा को आगाह किया गया कि पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का 90% काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि कस्टम और बॉर्डर कंट्रोल का भी मुअस्सर निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है। सियासी और पार्लिमानी क़यादत ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अफगानिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि 18% इजाफे के साथ पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा बरामदात का हदफ साल 2020-21 में हासिल हो गया है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि अगर खिदमात के शोबे को भी शामिल करें तो 31 अरब डॉलर से अब की बरामदात है। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में पाकिस्तान का एक्सपोर्टर मुल्क के माशी इस्तेहकाम का अहम सुतून होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने अपने ट्वीट में RLNG की ड्राई डॉकिंग के बारे में ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया है। उन्होंने कहा कि जहाज की तब्दीली बुध 30 जून को कामयाबी से मुकम्मल हो गई है। RLNG की 40% रिगैसिफिकेशन शेड्यूल में 2 दिन पहले ही हासिल हो चुकी है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमारा हदफ है कि कल तक 70% तक RLNG की सप्लाई बहाल कर दी जाए।
पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने गवर्नर हाउस लाहौर में एडवाइजर ब्राय यूथ अफेयर मियां अंस असलम डोला से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ को 100% यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान झुकने वाले नहीं बल्कि हमेशा डट जाने वाले लीडर हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पहली बार इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि मुल्क कौम को मुस्तहकम बनाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को भी पता चल चुका है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात का हुकूमती फैसला इंतखाबात को धांधली से पाक करना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कमजोर तबके को ऊपर लाने के लिए हुकूमत अमली इक़दाम कर रही है और एहसास प्रोग्राम नौजवानों के लिए हुकूमत का तारीखी शानदार मंसूबा है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि कोरोना के बावजूद पाकिस्तान माशी खुशहाली की जानिब गामजन है और पूरे पाकिस्तान में यकसा तरक्की के मंसूबे शुरू किए गए हैं। पाकिस्तान में रोमानिया के सफीर ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया और अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी से मुलाकात की। नाज़रीन आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के केसेस की शरह 2.72% रही। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 24 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1277 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 24 घंटे के दौरान 46,941 टेस्ट किए गए। मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 9,05,430 हो गई है, जबकि फाल केसेस की तादाद 31,910 है। भारत की गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी की कार्रवाइयां जारी हैं और भारतीय फौजियों ने एक ताज़ा कार्रवाई में जिला पुलवामा में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया है। इस नौजवान को जिला के इलाके राजपुरा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। कबल से इसी इलाके में 2 भारतीय फौजी एक झड़प में हलाक हो गए थे। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स स्टेशन पर जाली ड्रोन हमले में पाकिस्तान को मुलव्वस करने में नाकामी के बाद भारतीय काबिज इंतजामिया ने अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए जिला राजौरी में ड्रोन्स की खरीद फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि पहले से खरीदे गए ड्रोन्स को पुलिस के हवाले करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजौरी राजेश कुमार शून की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में जिले की हुदूद में फसाई बंदिशें आयद कर दी गई हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत ने कैदियों की फहरिस्त का तबादला किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में 609 भारतीय शहरी कैदी हैं, जिनमें 558 माहीगीर और 51 दूसरे कैदी शामिल हैं। भारत की जानिब से फराहम करदा फहरिस्त के मुताबिक 345 पाकिस्तानी भारत में कैद हैं, जिनमें 74 माहीगीर और 271 दूसरे पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। पाकिस्तान और भारत मुआहिदे के तहत साल में 2 बार कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। बैनुल अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान फोर्सेज के दरमियान मुख्तलिफ सूबों में शदीद लड़ाई जारी है और सुबह बगलान में लड़ाई के बाइस हजारों अफराद घर बार छोड़कर दूसरे शहरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान 8,000 के करीब खानदान बगलान से हिजरत कर चुके हैं। काबुल में एक धमाके के दौरान एक शख्स जख्मी हो गया। ज़राए के मुताबिक धमाके में पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब तालिबान ने सुबह पख्तिया में आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाले एक अहम पुल को धमाके से उड़ा दिया है, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। पुल सूबाइदार हुकूमत, शारान और 11 बड़े शहरों के दरमियान राबते का अहम जरिया था। दूसरी जानिब कई यूरोपीय मुल्कों ने अफगानिस्तान से अपने फौजियों का इंखला मुकम्मल कर लिया है। इटली और पोलैंड के फौजी भी अफगानिस्तान से वापस चले गए हैं। इतालवी फौज ने सूबा हरात में अपने फौजी कैंप का कंट्रोल अफगान फौज के हवाले कर दिया है। हरात एयरपोर्ट का कंट्रोल भी अफगान फौज के सुपुर्द कर दिया गया है। इतालवी फौज के इनखला के बाद सूबा हरात में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी हैं। दूसरी जानिब अफगान मफाहमती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला ने काबुल में काउंसिल कमेटी के इजलास में कहा कि आज अफगानिस्तान की बका, सलामती और इत्तेहाद खतरे में है और अमन के सिवा कोई बेहतर रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से गैर मुल्की फौजियों के इनखला के बाद जंग में शिद्दत आ गई है।
अफगान इंसदाद मनशियात के हुक्काम ने दारुल हुकूमत में पकड़ी जाने वाली 67 टन गैर कानूनी मनशियात को तबाह कर दिया। ज़ब्तशुदा मनशियात में खामफ्यून, चरस, हीरोइन और शराब और मनशियात के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल शामिल थे। काबुल में मनशियात को नजर आतिश किया गया और इस मौके पर हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद मनशियात के दफ्तर के नुमाइंदे भी मौजूद थे। अफगानिस्तान तवील अरसे से अफ्यून का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है, जिसने आलमी पैदावार का 90% फराहम किया। आगे बढ़ेंगे, खबर आप तक पहुंचाएंगे। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में शदीद गर्मी की लहर से हलाकतों की तादाद 486 तक पहुंच गई है। ब्रिटिश कोलंबिया के इलाके लिटन में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद पूरा इलाके को खाली करा लिया गया। शदीद तूफान के बायस आग 200 मुरब्बा किलोमीटर तक फैल चुकी है। लिटन की जानिब से हाईवेज और दीगर छोटी बड़ी शाहराहों को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। कनाडा में सबसे ज्यादा दर्ज हरारत का नया रिकॉर्ड भी इसी इलाके में बना है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने हीट वेव से हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने मुतासिरीन के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत करते हुए कहा कि हमें मौसमियाती तब्दीली के हवाले से फैसले करने की जरूरत है। अमेरिका के शिमाल मगरबी इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं और वहां भी मौसम की हरारत की वजह से अमवात हुई हैं। अमरीकी रियासत ओरेगॉन में अब तक हीट वेव से 63 अफराद हलाक हो चुके हैं। हीट वेव से बीमार होने वाले सैकड़ों अफराद का अस्पतालों में रश है। माहिरीन का कहना है कि हीट वेव की शिद्दत मौसमियाती तब्दीली की वजह से आई है। साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौरे हुकूमत ने वज़ीर दिफा के मनसब पर फाइज रहने वाले रम्सफेल्ड 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वो इराक जंग के खालिक थे। रम्सफील्ड का इंतकाल न्यू मैक्सिको के ताउन नामी कस्बे में हुआ, जहां वो रिहाइश पजीर थे। इराक जंग के आगाज से कबल रम्सफील्ड ने मारके की अहमियत का मुकदमा लड़ा और मार्च 2003 में इराक के खिलाफ अस्करी कार्रवाई का आगाज किया। उनकी वजारत के दौरान अमरीकी अफवाज इराक के सदर हुसैन की हुकूमत का तख्ता उलटने में कामयाब रहे, लेकिन बारजा वहां अमन और अमान कायम रखने में नाकाम रहे। उन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले मुशतबा इराकी हथियारों के बायस दरपेश खतरात से खबरदार किया था। तहम निशानदेही के हवाले से निशानदेही करदा बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार कभी दरियाफ्त नहीं हो पाए। रम्सफील्ड अमरीकी बहरिया में बतौर पायलट भी खिदमात अंजाम दे चुके थे। उन्होंने नेटो के लिए अमरीकी सफीर के तौर पर फराइज अंजाम दिए थे और वो अमरीकी हमारे नुमाइंदगान के रुकन भी रहे। उधर मोदी हुकूमत वायरस के लहर के दौरान मौसर इकदाम करने में बुरी तरह नाकाम रही है और भारत में मुल्क वायरस से मरने वालों की तादाद 4 लाख से तजावज़ कर गई है, जबकि मजीद 800 अफराद लुक़्मा अजल बन गए हैं। मजीद 43,000 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो एक्टिव केसेस की तादाद इस वक्त 5,18,000 है, जबकि दूसरी जानिब भारत में मगरबी महाराष्ट्र और गुजरात रियासतों में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की इतलात हैं। अब तक भारत में ब्लैक फंगस के 40,845 केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की सबसे ज्यादा तादाद भारत में है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक मोदी और मकामी हुक्काम कोरोना की इस दूसरी लहर को रोकने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। भारतीय हुकूमत ने ऑक्सीजन की सप्लाई और तकसीम में बहुत ताख़ीर की है। ब्राजील की हुकूमत ने भारत बायोटेक से मुहलिक कोरोना वबा से बचाव की 2 करोड़ खुराकें खरीदने के माहिदे को मुअत्तल कर दिया है, जिससे कंपनी की वैक्सीन कोवैक्सीन को बैरून मुल्क फरोख्त करने के लिए कंपनी के मंसूबे को शदीद धचका लगा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ब्राजील के वज़ीर सेहत मार्सेलो कीरोगो ने ऐलान किया है कि हुकूमत ने फेडरल कंट्रोलर जनरल की सिफारिशात के तहत भारत बायोटेक के साथ वैक्सीन की 2 करोड़ डोजेज की फराहमी के $30 करोड़ से जायद मालियत के इस मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि फेडरल कंट्रोलर जनरल पूरे मुआहदे का जायजा लेने के बाद इस सिलसिले में फैसला करेंगे कि आया इसे जारी रखना है या नहीं। ब्राजील और भारत बायोटेक के दरमियान मुआहदे पर एक मुकामी कंपनी के जरिए दस्तखत किए गए थे और इस मुआहदे पर मुल्क में शदीद सियासी तूफान बरपा था, क्योंकि हुकूमत की तरफ से मुहलिक वबा से निपटने में बद इंतजामी की तहकीकात करने वाले पार्लिमानी कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने इस मुआहदे को अपना बुनियादी हदफ बना रखा था। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 18 करोड़ 33 लाख से तजावज़ कर गई है, जबकि अब तक 39,70,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मरीजों के एतबार से अमरीका दुनिया भर में पहले, भारत दूसरे और ब्राजील बदस्तूर तीसरे नंबर पर है। उधर बांग्लादेश में एक रोज के दौरान अमवात का नया रिकॉर्ड बन गया है। 143 अफराद लुक़मा अजल बन गए।
मजीद 8,301 नए मरीज सामने आए। वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 14,666 हो गई है। रूस में भी कोरोना से रिकॉर्ड अमवात और केसेस सामने आए हैं। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 23,500 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जबकि 672 अमवात की तस्दीक हुई है। कोरोना और इसके भारतीय किस्म डेल्टा के तेजी से फैलाव के पेश नजर आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि यूरो कप 2020 के बकिया मैचेस के दौरान SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि मैच देखने वाले कई तमाशाइयों में दोनों किस्म के वायरस की तस्दीक हो चुकी है। रूस में आज यूरो कप का क्वार्टर फाइनल स्पेन और स्विट्जरलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मैच से 36,000 तमाशाई भी महसूस होंगे। आगे बढ़ेंगे। खबर आप तक पहुंचाएं कि आज़ाद कश्मीर में 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां जारी हैं और आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल की तारीख के बारे में देखते हैं अदील अहमद की रिपोर्ट। आजाद कश्मीर में जमहूरियत का सफर 1985 से शुरू हुआ। पार्लिमानी तर्ज पर पहली मरतबा इंतखाबात करवाए गए, जिसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कामयाबी हासिल की और सरदार सिकंदर हयात खान ने इस पार्लिमानी जमहूरी निजाम के तहत वजीर आजम की हैसियत से हलफ उठाया। इस असम्बली ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी की। 1990 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की, लेकिन सिर्फ एक साल बाद ही मुंतखब वजीर आजम मुमताज हुसैन राठौर ने अपने इत्तेहादियों के रवैयों से दिल बर्दाश्ता होकर असम्बली तहलील कर दी और 1991 में दोबारा इंतखाबात में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई और सरदार अब्दुल कयूम खान वजीर आजम मुंतखब हुए। 5 साल पूरे करने के बाद 1996 में फिर इंतखाबात करवाए गए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी वजीर आजम मुंतखब हुए। आईनी मुद्दत पूरी करने के बाद 2001 में इंतखाबात हुए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक बार फिर फातिह ठहरी। सरदार सिकंदर हयात खान दूसरी मरतबा वजीर आजम मुंतखब हुए। 2006 के इंतखाबात में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मुसलसल दूसरी मरतबा कामयाबी हासिल की और सरदार अतीक अहमद खान वजीर आजम बने। इस असम्बली ने आईनी मुद्दत तो पूरी की, लेकिन इस दौरान मेंबरान असम्बली का अदम एतमाद की तहरीकों पर जोर रहा और 3 मरतबा इन हाउस तब्दीली के नतीजे में पहले सरदार मोहम्मद याकूब खान, फिर राजा फारूक हैदर खान और आखिर में एक बार फिर सरदार अतीक अहमद खान वजीर आजम बने। 2011 के इंतखाबात में कामयाबी का कुर्रा पीपल्स पार्टी के नाम निकला और चौधरी अब्दुल मजीद वजीर आजम मुंतखब हुए। आज़ाद कश्मीर में 1985 के बाद से आज तक पाकिस्तान के सियासी जो भी निज़ाम चलता रहा, कभी माशाल्लाह कभी जमहूरियत, लेकिन आज़ाद कश्मीर में जमहूरी निज़ाम जो है वो तसलसल के साथ बरकरार रहा और इंतखाबात होते रहे। 2016 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की और राजा फारूक हैदर खान ने अनाने हुकूमत संभाली। एक मरतबा फिर इंतखाबात के लिए मैदान सज चुका है। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। आजाद कश्मीर की मौजूदा कानून साज असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने जा रही है, जिसके बाद आजाद कश्मीर की सुनहरी पार्लिमानी तारीख में एक और 5 साल का इजाफा होगा। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुजफ्फराबाद। कोरोना वायरस की वबा के बावजूद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 4,732 अरब रुपए के रिकॉर्ड टैक्स जमा किया, जो कि नजरसानी हदफ 4,691 अरब रुपए से 41 अरब रुपए ज्यादा है। अपने ट्वीट में वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फर्रुख हबीब ने कहा कि जमाशुदा रकम गुज़श्ता साल के रेवेन्यू 3,997 अरब से 18% ज्यादा है और 251 अरब रुपए के रिकॉर्ड रिफंड भी जारी किए गए। नून लीग ने 2017-18 में 3,842 अरब रुपए टैक्स जमा किया था, जिसमें 60 अरब डॉलर की दरामदाद और एडवांस टैक्स भी शामिल था, जबकि अरबों रुपए के रिफंड भी रोके हुए थे। नून लीग के आखिरी साल में एमनेस्टी स्कीम से हासिल होने वाला भी टैक्स शामिल था। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सिंध के हुकूक का हर सतह पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध की आवाम को पीने के साफ पानी के मसाइल का सामना है। सिंध के पानी के मसले पर वफाक के पंजाब हुकूमत से हम खुद बात करने को तैयार हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूबे के साथ नाइंसाफी का सोच भी नहीं सकती। मेरी किसी से जाती दुश्मनी नहीं, मैं सिंध के हुकूक की बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत 65 अरब रुपए सिंध में तकसीम किए गए।
सिंध कॉपर एंड गोल्ड प्रोजेक्ट में खाम माल का पैदावारी अमल दोबारा शुरू हो गया है। चीनी कंपनी एमसीसी रिसोर्स डेवलपमेंट के हुक्काम का कहना है कि सिंध प्रोजेक्ट से रवा साल 18,000 टन कॉपर ब्लास्टर निकाला जाएगा। मंसूबे में सिमुलेटर को दोबारा फाल बनाने से कॉपर ब्लास्टर की पैदावार का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक प्रोजेक्ट में मामूल के मुताबिक पैदावारी अमल रवा साल मार्च में शुरू होना था, लेकिन कोरोना वबा और सिमुलेटर में पैदा होने वाली चंद खराबियों के सबब ताखीर हुई। प्रोजेक्ट बहाली तकरीब में 70 साल पाक चीन सफारी ताल्लुकात की सालगिरह भी मनाई गई। अदन पंजाब भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल बगैर किसी तात्तुल से जारी है और सरकारी इदारों के मुलाजमीन को कोरोना से महफूज रखने के लिए दफातर में वैक्सीन लगाने का एहतमाम किया गया है। तफसील बता रही हैं लाहौर से वर्दा सलीम। पंजाब में अब तक 86,02,624 अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है और सूबे के तमाम कोल्ड रूम्स में वैक्सीन की वाफिर मिकदार मौजूद है, जिसे बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक महफूज रखने का बंदोबस्त किया गया है। सूबे के हर जिले में एक वैक्सीनेशन मरकज 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए मुसलसल फाल है। इस पेंडेमिक से पाकिस्तान को जल्द से जल्द निकालना है और उसका एक ही तरीका है कि हम सब लोग वैक्सीनेशन करवाएं। इस वक्त वैक्सीन लगाने का अमल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सीरियसली लिया जा रहा है और इसमें आप लोगों की कोऑपरेशन, हर बंदे की कोऑपरेशन जो है वो बड़ी जरूरी है। एनसीओसी की हदायत के मुताबिक पीटीवी लाहौर मरकज में भी वैक्सीनेशन सेंटर का आगाज हो गया है, जहां मुलाजमीन की वैक्सीनेशन की जा रही है। मुलाजमीन ने यह अहम सहूलत वर्क प्लेस पर फराहम करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी पीटीवी को मिली है। ये कंसाइनो वैक्सीन यहाँ पे लग रही है और ये सिंगल डोज है। ये पीटीवी की इंतजामिया की तरफ से बड़ी अच्छी कोशिश थी जो इनमें एम्प्लॉयज के लिए ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड की है। सूबे भर में कोरोना वबा से हिफाजत के लिए वैक्सीनेशन के वाफिर इंतजामात मौजूद हैं। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ही हमारा मौसर हथियार है, जिसके लिए हर फर्द, हर इदारा अपना फर्ज निभा रहा है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत कम हैं। पेट्रोलियम डिवीजन के जरा के मुताबिक रवा साल 1 मई से 30 जून तक सार्फिन को 11 अरब 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। इसी की तफसील जानते हैं नमरा सोहेल से। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। इस वर्ष कोविड की वजह से इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बैनुल-अक़वामी मार्केट की कीमत के मुताबिक इजाफा सार्फिन को मुंतकिल करने की बजाय खुद बोझ बर्दाश्त किया और तकरीबन 3 अरब 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी पेट्रोलियम लेवी और जीएसटी में कमी के जरिए फराहम की जाएगी। पेट्रोलियम लेवी इस वक्त पिछले 6 साल में कम तरीन सतह पर है, जबकि तमाम मसनूआत पर बजट के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी की शरह 30 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। माली साल 2020-2021 के दौरान हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी बजट में मुकर्रर करदा कीमत से भी कम तरीन सतह पर रखकर सार्फिन को 252 अरब 41 करोड़ रुपए की सब्सिडी फराहम की। 1 से 15 जुलाई तक पेट्रोल, मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल में मुकर्रर 30 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी वसूल करने की बजाय सब्सिडी दी जाएगी, जबकि हाई स्पीड डीजल पर 1 रुपए 9 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी की वसूली के साथ 28 रुपए 10 पैसे की सब्सिडी सार्फिन को फराहम की जाएगी। 1 जून से 15 जून तक पेट्रोल की कीमत में 0.07 पैसे फी लीटर, मट्टी के तेल की कीमत में 0.67 फी लीटर, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 0.70 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए 36 पैसे फी लीटर के रिलीफ के साथ मजमूई तौर पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए का रिलीफ हुकूमत ने सार्फिन को फराहम किया। 16 जून 2021 से 30 जून तक पेट्रोल की कीमत की मद में 2 रुपए 14 पैसे फी लीटर, मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 88 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 79 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपए 2 पैसे फी लीटर के रिलीफ के साथ 1 अरब 68 करोड़ रुपए का रिलीफ सार्फिन को फराहम किया गया। 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 5 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर के रिलीफ के साथ मजमूई तौर पर 3 अरब 10 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में इस वक्त बहुत कम है। भारत में 214 रुपए 18 पैसे फी लीटर, बांग्लादेश में 165 रुपए 85 पैसे, नेपाल
नेपाल में 169 रुपए 13 पैसे फी लीटर, श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 146 रुपए 10 पैसे फी लीटर, चीन में 181 रुपए 60 पैसे फी लीटर, इंडोनेशिया में 115 रुपए 90 पैसे फी लीटर और भूटान में 145 रुपए 70 पैसे फी लीटर, जबकि पाकिस्तान में डीजल की कीमत 113 रुपए 99 पैसे फी लीटर, भारत में 197 रुपए 93 पैसे, बांग्लादेश में 121 रुपए 13 पैसे फी लीटर और नेपाल में 146 रुपए 49 पैसे फी लीटर है। भारत में पेट्रोल की कीमत का तयन रोजाना की बुनियाद पर किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर 15 दिन के बाद मुतय्यन की जाती हैं और हुकूमत की कोशिश होती है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों के इजाफे का बोझ सार्फिन पर ना पड़े। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और दुबई में पाकिस्तान के कौंसल जनरल अहमद अमजद अली ने पाकिस्तानियों को खिदमात की फराहमी में बेहतरी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्ताह किया है। मोबाइल एप्लीकेशन दस्तावेजात की तस्दीक, वीजा, पासपोर्ट और कौमी शनाख्ती कार्ड के लिए दरखास्तों समेत कौंसलेट से मुतालिक दीगर खिदमात तक रसाई फराहम करती है। इस मौके पर कौंसल जनरल ने कहा कि दुबई में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी कौंसल खाना आने के बजाय घर बैठे कौंसल खिदमात हासिल कर सकेंगे। कोयटा के नवाही इलाके कचमूर में एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के जेर निगरानी मनशियात को नजर आतिश करने की तकलीफ से खिताब करते हुए वफाकी सेक्रेटरी इंसदाद मनशियात कैप्टन रिटायर्ड अकबर हुसैन दुरानी ने कहा कि मनशियात से पाक माशरा हमारा आज़म है। मुल्क में ANF समेत तकरीबन 16 इदारे मनशियात के इंसदाद के लिए काम कर रहे हैं और इस मकसद के हुसूल के लिए जानों का नजराना देने वाले ANF के जवानों को खराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि वक्त की ज़रूरत है कि उलमाए कराम मुआशरे में मनशियात के मुज़र असरात और इसके तदारुक के लिए आगाही पैदा करें। वफाकी सेक्रेटरी ने तालीमी इदारों पर भी जोर दिया कि वह तलबा में मनशियात के इस्तेमाल के बढ़ते हुए रुझान को ख़त्म करने के लिए मुअस्सर पॉलिसी बनाएं। ANF की जो क़यादत है बहुत बड़ा काम कर रही है, लेकिन मैं साथ साथ FC बलोचिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे उसमें पुलिस है, चाहे उसमें लेडीज है, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट है, कस्टम डिपार्टमेंट है, जिसमें काम कर रहे हैं, ये सब के सब हमारी तरफ से खराबल दस्ते का काम करते हैं और वो लोग जो इस धंधे मकरूह धंधे में शामिल हैं और जो काम कर रहे हैं, मैं हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि उनको कानून के दायरे में लाया जाए। नाज़रीन, कुछ मौसम के हाल आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको पहले बताते चलें कि हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है मौसम के हवाले से बात करने के लिए सरदार सरफराज साहब, जो कि माहिर मौसमियात हैं। उनसे जान लेते हैं मौसम के हवाले से। सर, बताइएगा कि क्या जो है वो हालात जा रहे हैं मौसम के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर, और आइंदा अगर 24 घंटों की बात करें तो किस तरह देखते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये आज से कुछ स्पेल है स्कैटर्ड सी रेन और डस्ट स्टॉर्म वगैरह, कोई आंधी पंजाब के भी मैदानी इलाकों में और इसी तरह KP के मैदानी इलाकों में और ईस्ट बलोचिस्तान में, इन सब एरियाज में अगले 2 से 3 दिन तक है स्कैटर्ड वेदर। कहीं पे डस्ट स्टॉर्म, कहीं पे थंडर स्टॉर्म, रेन, और ये 2 से 3 दिन तक ये सिलसिला चलेगा। सिंध में भी इम्कान है 4 और 5 की दरमियानी रात को कुछ जगहों में, खासकर तादू, लाड़काना और सखर साइड पे कुछ आंधी वांधी चलने और कहीं पे हल्की और कहीं पे दरमियानी बारिश, खासकर दादू डिस्ट्रिक्ट की तरफ और ईस्ट बलोचिस्तान के साथ जो लगता है। तो ये है अगले 2-3 दिन का वेदर। कराची में पार्टली क्लाउडी वेदर रह रहा है आजकल जनरली, और यहाँ पर निस्बतन बेहतर मौसम है। ऊपर तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, यहाँ पर 34-35 मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है और आज और कल ज़्यादा क्लाउड आने का यहाँ पर इम्कान है। उसके नतीजे में यहाँ बूंदाबांदी रात में खासकर मुतवक्की होती है, रात में और सुबह में। अच्छा, अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि सिंध के इलाकों के अंदर अगर बारिश का जिस तरह इम्कान है, अगर बारिश हो जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हीट वेव आई हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्या मौसम के अंदर थोड़ी तब्दीली देखी जाएगी? अगर बारिश हो जाती है, पार्टली क्लाउडी होता है, तो फिर किस तरह होगा?
जी बिल्कुल, हीट वेव जो है वो जैसे ऊपर पंजाब में भी टेम्परेचर ज़्यादा थे और अपर सिंध में भी बहुत 50 तक पहुंच गया था कल दादू में, तो ये सब साइड कर जाएगी। जो इसकी बहुत शिद्दत थी आज से उम्मीद है कि उसमें क्लाउड आने की नतीजे में और कहीं कि जब आंधी वांधी चलेगी, बारिश होगी, तो उसके बाद हीट वेव सबसाइड हो जाएगी। सही सर, अगले हफ्ते की अगर बात करें तो अगले हफ्ते मौसम कैसा रहेगा और गर्मी की शिद्दत में कमी मतवक्के है, और खास करके कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मौसम के हवाले से बताइएगा, वहाँ का मौसम तब्दील हो सकता है? देखिए उधर गिलगित बल्तिस्तान में तो है इम्कान, ये स्पेल जो है प्रोलॉन्ग करेगा, बारिश उधर चलती रहेगी ऑन एंड ऑफ पूरा अगला कमोबेश एक हफ्ता ही है। और बाकी जगहों में ये 2 से 3 दिन का स्पेल है, यानी आज जुम्मे से लेके ये संडे तक है ये स्पेल पंजाब के मैदानी इलाकों में और केपी के इलाके में और खासकर मशरकी बलूचिस्तान, ये जो एरियाज हैं, तो ये संडे तक है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी जगह में हो सकता है ये पीर तक चला जाए और उसके बाद कुछ दिन ड्राई होंगे, और ज़ाहिर है जब ड्राइनेस आती है तो गर्मी एक दफ़ा फिर बढ़ जाएगी। जी सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया का माहिर मौसमियात के इस हवाले से बात कर रहे थे। राह रात से चलेंगे आपको इस्लामाबाद, जहां मुआविन खुसदी शहबाज के लिए इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। अभी बात की कि जब स्पोर्ट्स फ्लरिश करेगी तो स्पोर्ट्स का जो जर्नलिस्ट है वो भी फ्लरिश करेगा, उसको मौके मिलेंगे, उसको मेन स्टेज मेन स्ट्रीम पे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो अभी जो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है सारी सिचुएशन में PSL के आने से कि थोड़ी बेहतरी हमें होती नज़र आई है। इसी तरीके से मेरे ख्याल में हमें हॉकी की भी अपनी एक लीग बनानी चाहिए, हमें इसी तरीके से बॉक्सिंग की लीग बनानी चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है, और जब हम ये तमाम चीज़ें कर लेंगे तो आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है उसे फ्लरिश होने में, उसे अपना काम करने में मौका भी मिलेगा, मेन स्टेज भी मिलेगा। दूसरी बात जो इन्होंने कही, पाकिस्तान के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इसलिए भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है आम दुनिया में, इतनी ज़्यादा यूथ बहुत कम मुल्कों के पास है और इसका एक बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास, छोटा नंबर नहीं है। अब अगर हम उनको स्पोर्ट्स की तरफ, हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं लेके आएंगे तो वो कोई ना कोई एक्टिविटी तो करेंगे। अब अगर वो एक्टिविटी बहुत मनफी नहीं होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर के सामने बैठना होगा, हिलना जुलना कम होगा, फिजिकल एक्सरसाइज कम होगी, उससे आपके यहाँ ओबिसिटी आएगी जिसको आज अमेरिका फेस कर रहा है। ओबिसिटी, ओवरवेट, उसके आगे फिर डायबिटीज, उसके बाद हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेज, तो उसके ऊपर आपकी जो कंट्री है उसका बहुत कीमती सरमाया इंसानों की सूरत में भी ज़ाया होगा, उनकी सेहत की सूरत में भी ज़ाया होगा, और अगर आपने उनकी प्रिवेंटिव केयर करनी है तब भी, और अगर उस टाइम आपने सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है तब भी आपका एक खतीर रकम रिसोर्सेज उसके ऊपर लगेंगे। तो मुल्कों की पॉलिसी मेकिंग में और प्लानिंग में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि बजाय इसके कि आप ओबिसिटी के बाद एक पूरी नस्ल की प्रोडक्टिविटी आपकी नीचे जाए, आपकी जो उसके ऊपर आपका कसीर जो सरमाया वो लगे, उससे पहले खेलों की प्रमोशन के ऊपर पैसा लगाएं ताकि लोग फिजिकली फिट रहें। बहुत सारे मुल्क आप जाएंगे तो आपको बहुत कम वहाँ पर ऐसे लोग नजर आएंगे जो रोज फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ ये रुझान कम होता जा रहा है। और जैसे शाकिर ने अभी यहाँ कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का वो जो कल्चर है वो ना तो फरोग पाया उसके बाद, और ना ही उसके अंदर हमने उसमें कोई अट्रैक्शन ऐड की अपनी यूथ के लिए, और उसमें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का बहुत बड़ा किरदार है। क्योंकि एक नॉर्मल जो हैपनिंग हो रही होती है, जैसे हम पॉलिटिक्स में स्टार्स बनते हैं, तो ये जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो हमारे उन मोमेंट्स को कैप्चर करके आवाम तक लेके जाते हैं, और उनसे आपकी जो फॉलोइंग है, आपकी जो आवाम के साथ एक रिश्ता है वो इस्तवार होता है और आपको मदद मिलती है अपने मैसेज को पहुंचाने में। इसी तरीके से एक स्पोर्ट्समैन की, आपको याद होगा हम अपने कमरों में, आप लोग भी जरूर लगाते होंगे, अभी भी शायद लगाते होंगे, क्रिकेट लवर्स, अब डिफरेंट प्लेयर्स की डिफरेंट पोस्टर्स के अंदर जब वो खेल रहे होते थे, बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, हॉकी में उनके बड़े बड़े पोस्टर्स कमरों में लगे होते थे। तो वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स कैमरामैन जो है, उन्हीं का कमाल होता था कि वो मोमेंट्स कैप्चर करके, जब बहुत सारी चीजें लाइव भी नहीं आती थी बल्कि वो मवासलाती सियारे में खलल हो जाता था,
90 मिनट का मैच जो है उसमें 15-20 मिनट वही चलता रहता था कि मवासलाती सितारे से राब्ता मुमकिन नहीं है और ये मैच आपको नहीं दिखाया जा सकता। तो उस जमाने में जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था उसका जो किरदार था वो उसी की वजह से हम बहुत सारे हीरोज के साथ हीरोज बने और बहुत सारे हीरोज की बहुत सारी डिफरेंट जो जैसे हैं उनकी पर्सनैलिटी की उनके साथ हम इंट्रोड्यूस हुए। इसके साथ साथ जो दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी सोसाइटी के लिए 2 से 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वो वहां पनपे। एक तो वहां मज़ाक पनपे, उसके बाद वहां पर कल्चर, हेरिटेज, लिखना लिखाना, इल्मो अदब, और उसके बाद जो तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्पोर्ट्स है। हमारे बदकिस्मती ये हुई है कि हमारा जो सबसे ज्यादा प्राइम टाइम है और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मीडिया का जो बिजनेस है वो न्यूज, करंट अफेयर हो गया। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे बहुत सारे और जो जर्नलिज्म के हिस्से हैं वो दब गए। आपने देखा होगा, शायद ही आपको पिछले 1 महीने के अंदर या 2 महीने में या 4 महीने में आप एनालिसिस कर लें, आपको कोई नर्सेज के मसाइल के ऊपर कोई टॉक शो होता नजर नहीं आया होगा। आपको किसानों के जो बहुत ही इंडिजिनस किस्म के मसाइल हैं उसके ऊपर आपको डिस्कशन होती नहीं नजर आई होगी। बच्चों के बलूगत के वक्त जो उनके इश्यूज हैं और पेरेंटिंग के जो इश्यूज हैं जब बच्चों की बलूगत के जमाना है, उसके ऊपर आपको सोसाइटी में कोई डिस्कशन, कोई जर्नलिज्म में, कोई टीवी की स्क्रीन पे कोई माहिरीन बैठे बात नहीं करते नजर आए होंगे। बहुत सारी चीजों की जो मिसपरसेप्शंस हैं हमारी सोसाइटी में, टैबूज बने हुए हैं, मिसपरसेप्शंस है, उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, उसके ऊपर आपको बात होती नजर नहीं आई होगी। आपको कभी नहीं याद होगा कि डाकिया भी हमारी सोसाइटी के अंदर है, उसका क्या रोल है, उसकी क्या एफिशिएंसी है, उसको कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, उसकी जो जॉब स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। हमारे बहुत सारे बच्चों को पूछे उन्हें पता ही नहीं होगा पोस्ट ऑफिस का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि कभी उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगी। रोड कैसे बनते हैं, रोड के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, आवाम की आगाही के लिए ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज के ऊपर क्या हो रहा है, उस पर आपको कभी कोई चीज नजर नहीं आती होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पोर्ट्स का जर्नलिस्ट है वो असल में वो जर्नलिस्ट है जो फील्ड में काम करता है, उसका सारा काम ही फील्ड का, वो डेस्क स्टोरी फाइल कर ही नहीं सकता। अगर करेगा तो वो मेरा भी ख्याल कि उसको जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में वो पजीराई मिलेगी। उसका सारे का सारा काम ही फील्ड का है, और जो सही रिपोर्टर है उसको पता है कि जब आप फील्ड में काम करते हो तो डेस्क वर्क जो है वो फील्ड के काम को कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। अब जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनसे मेरे ख्याल में दूसरे लोगों को सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि उन्हें भी फील्ड में निकलना चाहिए। इवन पॉलिटिकल शो आपने करना है तो क्यों जो पाकिस्तान की 65% आबादी है उनको शो के ऊपर चले 65% हिस्सा नहीं देना तो 35% दे दें। सारे टॉक शोज, सारी बातें यूजुअली अर्बन एरियाज के ऊपर होती हैं, कभी किसी गांव के चौपाल में, किसी चौराहे में, किसी बैठक में, किसी पंचायत में बैठ के वो टॉक शो क्यों नहीं होता। गांव के जो मसाइल हैं उनको इतना छोटा मसला क्यों समझा जाता है, किसान की रिप्रेजेंटेशन वहां क्यों नहीं होती, मजदूर की, बिल्डर की होती है, हाउसिंग सोसाइटीज की होती है, मजदूर की रिप्रेजेंटेशन वहां पर बहुत कम होती है, क्योंकि हमें लगता है मजदूर तो शायद टीवी पे बात ही नहीं कर सकेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे बहुत सारे प्लेयर भी जो है कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वो अपनी स्पोर्ट्स को जानते हैं। जब आप उनका इंटरव्यू करते हैं तो आपको बहुत सारी इंसाइट देते हैं। ऐसे ही जब आप किसी भी सोसाइटी में जाएंगे और वहां पर लोगों से बात करेंगे तो आपको, जैसे शाकिर कह रहे थे, स्पोर्ट्स जो है, मैं अमेरिका की मेरी जो वाबस्तगी है वो दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, और बिग 10 वहां पर एक कॉन्सेप्ट है, जो 10 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो एक दूसरे से एक लीग खेलती हैं। जैसे यहाँ PSL है, वहां बिग 10 है, तो अमेरिका की जो 10 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो एक दूसरे से लीग खेलती हैं। मेरी यूनिवर्सिटी भी उसका हिस्सा है। तो वहां पर जो मैचेस होते हैं यूनिवर्सिटी के, मेरा ख्याल हमारी पूरी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की टिकटों की उतनी आमदनी होती होगी जितनी सिर्फ उस बिग 10 की कई गुना ज्यादा होती होगी, क्योंकि वो जो लोग उस यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके होते हैं वो उनके साथ एसोसिएट रहते हैं, उनकी खबरें पढ़ते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसमें फंड करते हैं। तो स्पोर्ट्स सिर्फ एक खेल तमाशा नहीं है, बल्कि इट्स वेरी वेरी मैं ये कहूंगा कि जो इंटेग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का वो है, एंड इट शेप्स सोशल बिहेवियर, इट शेप्स हाउ वी थिंक, हाउ वी रिएक्ट, हाउ वी एक्चुअली लिव इन अ सोसाइटी। इससे सिर्फ ये नहीं कि स्पोर्ट्स से आप फिजिकली फिट होते हैं, आपका मेंटल, आपकी कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट डिफीट और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यू आल्सो अचीव इट थ्रू स्पोर्ट्स।
बिकॉज स्पोर्ट्स में आप जीतना भी सीखते हैं, आप हारना भी सीखते हैं, आप डिफरेंट लेवल पे आपको ये भी समझ आती है कि किसी की कैपेबिलिटी और है, वो वहां पर जाके शॉट खेल सकता है, मैंने नहीं खेलनी। तो आप अपनी लिमिटेशंस को भी समझते हैं, आप दूसरे बंदे की परफॉर्मेंस को भी समझते हैं। तो स्पोर्ट्स जो है वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भले वो चेस खेल रहे हों घर में बैठे। आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं एक गांव में पला बड़ा, तो हमारे नजदीक ताश खेलना, चेस खेलना, ये कोई बहुत अच्छे मशगले नहीं समझे जाते थे। जब मैं अमेरिका में गया तो मुझे पता चला कि बच्चों को बिठाकर ये चीजें खिलाई जाती हैं। अच्छा, अब इसका कनेक्शन मैंने ढूंढने की कोशिश की कि क्या है, तो कनेक्शन ये बना कि वो बच्चा अगर चेस में अच्छा होगा, अगर वो कार्ड्स में अच्छा होगा, तो कल को वो अच्छा डिसीजन मेकर होगा, बिकॉज वो क्विकेस्ट टाइम में मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। ये गेम्स उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग की प्रोसेसिंग को तेज करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैंने एक जवाब दिया, इफ यू आर क्रिटिकली साउंड, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपके माइंड को आती हैं, तो आप अगले सेकंड जो आपने सवाल सोचा हुआ वो छोड़ के एक नया सवाल गढ़ लेंगे उसी टाइम में। तो आपने अच्छा जर्नलिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, जो भी बनना है, हर जगह पे मैथमेटिक्स इस्तेमाल होती है। आपको मैथमेटिकली पता होना चाहिए कि मेरा ये बॉडी पॉस्चर, मैं अगर अपना आर्म यहां पर लेके जाता हूं तो मेरी टांगों पे इसका क्या असर पड़ता है, मेरी पूरी बॉडी पे क्या असर पड़ता है। तो मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड। हमें स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, लेकिन बताया नहीं जाता कि ये क्यों पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ये सोचते हैं बस 10वीं पास करनी इसलिए पढ़ रहे हैं, उसके बाद तो मैथ्स पढ़नी नहीं। हालांकि दैट इज वेरी मच पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ब्रिज बन रहे हैं, वो ब्रिज का जो कर्व है उसके नीचे अगर एक चीज आप अपना घर बना रहे हैं, एवरीथिंग इज विद मैथमेटिक्स। आपने कहाँ वेट डालना है, कहाँ से नहीं डालना। तो इसी तरह स्पोर्ट्स जो है मैथमेटिक्स की तरह मैं कहूंगा एक इंटेग्रल पार्ट है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, ह्यूमन सोसाइटी का, जो सिर्फ खेल और फिटनेस की तरफ नहीं रखती बल्कि हमारी पूरी सोसाइटी को शेप करती है। जहां तक रही आपकी बात स्पोर्ट्स के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए, फरक साहब भी आपसे डिस्कस करेंगे चीजें। मैं क्विकली उस पर रैप अप आपको ये कर दूं कि चौधरी फवाद साहब, फरक साहब, मैं और प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में ये इस बात में बिल्कुल कमिटेड हैं कि जो जर्नलिस्ट जो नीचे है जर्नलिस्ट फाइनेंशियली, उसको अब हेल्प करनी है। जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं उनके पास 2-2, 4-4 घर हैं हर जगह पे, आप चेक करें। लेकिन जो नीचे जर्नलिस्ट है उसकी कोई नहीं सुनता। जब लिस्टें भी बनती हैं वो किसी एक, क्योंकि प्लॉट लिमिटेड होते हैं, चीजें लिमिटेड होती हैं, कहीं ना कहीं कट ऑफ लाइन लग जाती है। और जो जर्नलिस्ट कम कमाने वाला है वो उस कट ऑफ लाइन को दूर नहीं कर पाता। तो एक तो जो हमारा नया पाकिस्तान हाउसिंग है उसके अंदर फवाद साहब की इस पर मीटिंग भी हुई है और उसके ऊपर हमने जरूर कोशिश करनी है कि जो कम सैलरीड जर्नलिस्ट है हमारे, उनको उस पर मौका दें। दूसरा, जो कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो सफायर बे रिवर रावी का प्रोजेक्ट है, उसको सफायर बे को जो पहला जावेदान कंसोर्शियम है जिन्होंने इसे विन किया है, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको वो जो प्राइवेट सेक्टर है प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये ग्रीन सिटी है, तो वहां रिक्वेस्ट करेंगे कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है, स्पोर्ट्स मैन को भी कोई हिस्सा दें और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को भी किसी तरह की वहां पर आसानी दें कि वो वहां इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये मैं पर्सनली भी बात करूंगा, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि प्राइम मिनिस्टर क्योंकि खुद एक स्पोर्ट्स मैन है, उनके नजदीक बहुत ही नजदीक है ये सारा कुछ उनके दिल के। हम हर तहसील लेवल पर एक अच्छा ग्राउंड बना रहे हैं। ज्यादातर तहसीलों में पंजाब में बन चुके हैं, तकरीबन आई थिंक 40 के करीब या 45 के करीब बन चुके हैं। उसके आगे बन रहे हैं। केपीके में ये पहले से शुरू हुआ है, हमारे पास पहले 5 साल थे। तो स्पोर्ट्स ग्राउंड भी स्टूडेंट्स के पास लेके जा रहे हैं। उसके साथ साथ मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के ऊपर जरूर कुछ कोर्सेज करवाने चाहिए। अगर डिग्री नहीं तो शॉर्ट कोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जो है वो बहुत डिफरेंट है नॉर्मल जर्नलिज्म से। जैसा शाकिर ने कहा कि आपका बड़ा 1-on-1 रिलेशनशिप होता है। वो जो प्लेयर है उसकी साइकी समझना, वो पहला ओवर करेगा तो क्या करेगा, 8वां ओवर करेगा तो क्या करेगा, आपका उससे बड़ा क्लोज कनेक्शन होता है। वो साइकोलॉजिकल एंगल उस चीज का समझना, उस स्पोर्ट्स के ओवरऑल ऑरा को समझना, उस मैच की इंपॉर्टेंस को समझना। फिर फोटोग्राफी है या स्पोर्ट्स की राइटिंग है, उसके लिए भी आपको एक खास मिजाज चाहिए। तो उसके लिए अगर पूरी डिग्री नहीं तो कोर्सेज करवाए जाए। ये भी कोशिश करेंगे कि लाहौर से इसको शुरू करवाया जाए। मेरी पहले ही इस सिलसिले में सूफीइज्म पे
और स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पे ये ऑलरेडी मेरी 2 वाइस चांसलर्स के साथ बात हुई है, क्योंकि मैंने वहां देखा कि वहां पर फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो मास्टर्स भी करवाता है, पीएचडी भी करवाता है, और वो है स्पोर्ट्स स्टडीज। उसमें आप जर्नलिस्ट भी बनते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजर भी बनते हैं, कोच भी बनते हैं, स्पोर्ट्स की पूरी दुनिया को आप आगाही करते हैं। और अगर आप एज ए जर्नलिस्ट बनने के लिए वहां कोर्सेज ले रहे हैं तो आपके जो क्लास फेलोज हैं वो कोचेज भी हैं फ्यूचर के, तो आपकी एक नेटवर्किंग भी बनती है। कल को आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और वो टेनेसी का, इलिनॉय का, किसी और स्टेट का कोच है, तो आपको इंफॉर्मेशन के लिए एक्सेस भी है, आपका वो एक नेटवर्क बनता है। तो हमें यहाँ भी ये चीजें लानी हैं, ये चीजें इंट्रोड्यूस करनी हैं, और हमें अपनी सोसाइटी में जो हेल्दी एलिमेंट्स हैं, हमने बहुत बुरा वक्त देखा 2001 के बाद, जिस तरीके से एक्सट्रीमिज्म हुआ, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी की तमाम जो फाइन डेलिकेट लेयर थी जिन पे हमें बड़ा नाज था, उनको डिसरप्ट किया गया और टेररिज्म ने पूरे कंट्री को लपेट में लिया। उसके बाद हमारे यहाँ स्पोर्ट्स बिल्कुल ही बंद हो गई, अगर आपने देखा हो तो दोबारा से अल्लाह ने एक सिलसिला शुरू किया है। आप लोगों का बड़ा अहम रोल है। हम हुकूमत के तौर पर, मैं ज़ाती तौर पर, जहाँ भी आपको सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह पूरी तरह प्रोवाइड करेंगे। अल्लाह आप सब लोगों का हामी नासिर हो। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेलों को फरोग वक्त की अहम जरूरत है, मुल्क में खेलों के कल्चर को फरोग देने की जरूरत है। और अब खेलों की खबरों के लिए आपको ले चलते हैं शफीक खान के पास। खेलों की खबरों में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेंस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2021-22 का ऐलान कर दिया गया है। 20 एलीट क्रिकेटर्स के लिए ऐलान करदा फहरिस्त में कॉन्ट्रैक्ट की 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज समेत 3 इमर्जिंग कैटेगरीज को भी शामिल किया गया है। खिलाड़ियों की माहवार आमदनी में 25% इजाफा किया गया है और तमाम कैटेगरीज के लिए यकसा मैच फीस मुकर्रर की गई है। बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी कैटेगरी ए में शामिल हैं। अजहर अली, फहीम अशरफ, फखर जमान, फवाद आलम, शादाब खान और यासिर शाह कैटेगरी बी, आबिद अली, इमामुल हक, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, नोमान अली और सरफराज अहमद कैटेगरी सी में शामिल हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे है, ये एक इंतहाई अहम मौका है, एक इंतहाई अहम इवेंट है। और अभी मेरी इनसे बात भी हो रही थी कि जिस तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत सारी जो रूटीन है हमारी, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं जो शायद हमारे लिए इंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट क्रिएट करने की बजाय जो है वो टेंशन क्रिएट कर रही होती हैं। और हमारा जो सारा जो असर है वो हम देख रहे थे, एक स्टडी भी, तो एक बहुत बड़ा जो कंटेंट है लोगों का वो शायद हमारी जो पॉलिटिकल जो कंटेंट है उससे चेंज होकर इंटरटेनमेंट की तरफ जो है वो वापस जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अखबारात के जो स्पोर्ट्स सेक्शन जो 2-2 सफ़ों के होते थे वो कम होकर जो है वो आधे सफ़े के ऊपर आ गए हैं। और बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिनके स्पोर्ट्स सेगमेंट्स ही ख़त्म हो चुके हैं। बाकायदा तौर के ऊपर एक स्पोर्ट्स सेगमेंट होता था जिसमें हमारे तमाम इवेंट्स जो हैं उसके अंदर कवर होते थे। तो इस चीज़ को भी आज के दिन के मौका के ऊपर हम रियलाइज़ भी कर रहे हैं और इसको हम टेकअप भी करेंगे ताकि वापस जो हमारा शिफ्ट है, जो आपका ड्यू शेयर है, वो आपको अखबारात और जो ड्यू टाइम है वो चैनल्स के ऊपर मिले, जिसमें हम अपने जो हमारे अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनका जो काम है उसको हम हाईलाइट कर सकें। क्योंकि मौजूदा हुकूमत में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जिनकी अपनी सारी यहाँ तक की जो पहुँचने की जो स्ट्रगल है, वो उनका करियर जो है वो एज ए स्पोर्ट्समैन के तौर के ऊपर स्टार्ट हुआ। और इसमें भी कोई शक नहीं कि वो उन्होंने पाकिस्तान को क्रिकेट का ना सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन बनाया, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो क्रिकेट की दुनिया के अंदर, आज भी पूरी दुनिया के अंदर एक टॉप लेजेंड के तौर के ऊपर दुनिया उन्हें जो है वो रिकग्नाइज करती है। और वो बहुत सारे हमारे जो
क्रिकेट के बड़े लेजेंड्स गुजरे हैं, उनके भी वो आइडियल रहे हैं, और जो हमारी बहुत सारी यूथ जो क्रिकेट के अंदर आती है वो उनको आइडियलाइज करती है। और उसके अलावा भी जो स्पोर्ट्समैन के अंदर एक एबिलिटी होती है, फाइटिंग स्पिरिट होती है, और उसके अंदर जो एक एनालिटिकल सलाहियत होती है अपने स्ट्रेंथ को पहचानने के हवाले से, उस हवाले से भी वो तमाम जो हमारी स्पोर्ट की जितनी भी फील्ड्स हैं उनके लिए एक मिसाल है। तो यकीनन हमारा इसके ऊपर भी फोकस है। और जहाँ तक रह गई बात हमारे जो वसाइल अवेलेबल हैं, उस हवाले से हमारा इरादा है कि हम एक पूरा अपने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलके स्पोर्ट्स के हवाले से एक कॉम्प्रीहेंसिव एक्टिविटीज़ को जो है वो लॉन्च करें। उसमें हमारी जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो उसके ऊपर जो है वो काम कर रही हैं, और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको एक कौमी सतह के ऊपर जो है वो स्पोर्ट्स का, इवेंट्स का जो है वो प्लान आपको नज़र आएगा, और उसके ऊपर अमल दरामद भी नज़र आएगा। जहाँ तक रह की बात हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो दीगर बीट्स को जो है वो कवर करते हों, उनके मसाइल तकरीबन सबके एक जैसे ही हैं, और उनके मसाइल को हल करना, उनकी बात को सुनना, उनके एहसासात को समझना, ये हमारी जो है वो तरजीहात के अंदर शामिल है। और इस हवाले से हमने एक पूरा अपना एक लाहा अमल तैयार किया है। इंशाअल्लाह उसमें आपको आपके एंड के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी जो है वो आसानियाँ नज़र आएंगी। तो मैं ये कहकर आज का आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज इस अहम मौका के ऊपर जो है इन्वाइट किया। बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फर्रुख हबीब तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और कौमी सतह पर स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अखबारात और टीवी चैनल्स पर खेलों से मुताल्लिक़ खबरों में कमी आई है। इसी के साथ ही पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही।